Hi everyone, welcome back to our channel Learn Well. Today's topic is Exchange Traded Fund, commonly known as ETFs. In this video, we will understand what you mean by exchange traded funds. We will discuss its meaning, definition, features, types, advantages, disadvantages, and finally, the important question are ETFs better than mutual funds or not? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट जैसे कॉन्सेप्ट इजी लैंग्वेज में समझना है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो स्टूडेंट, दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। We will discuss its meaning, definition, different types, advantages, disadvantages, and also compare the ETFs with the mutual funds. As we saw, the ETFs and the mutual funds both have their own benefits, and the best option always depend on the investor's financial goal, risk appetite, and the investment strategies. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। Exchange traded funds are the investment funds that are traded on the stock exchange, meaning they can be bought and sold on a stock exchange just like a regular stocks. ETFs are one of the most popular type of exchange traded products. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स वो इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, बिल्कुल शेयर्स की तरह ही होते हैं। मतलब आप ETFs को बाय और सेल कर सकते हो जैसे नॉर्मल स्टॉक को करते हो। आज के टाइम में ETFs बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुका है। ETF holds a basket of assets such as stocks, bond और commodities. ETFs एक basket of asset hold करता है जैसे शेयर्स, बॉन्ड या फिर commodities. इसका मतलब एक ही ETFs के अंदर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। Meaning, an exchange traded funds is a type of investment funds that holds a collection of assets such as stocks, bonds, commodities, or other securities trades on a stock exchange similar to a stock. ETFs एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज या दूसरे सिक्योरिटीज का कलेक्शन होता है और ये स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह ही ट्रेड होता है। ETFs can be bought and sold throughout the trading day, giving the investors flexibility to enter and exit the position at any time while market are open. ETFs को आप पूरे ट्रेडिंग डे के दौरान कभी भी बाय या सेल कर सकते हो। इससे इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो म्यूचुअल फंड्स में नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। According to John C. Bogle, an exchange traded fund is a basket of investments like a stock and bonds. ETFs allow you to invest in many securities at a one and are easy to trade. जॉन सी पॉगल के अकॉर्डिंग ETF एक इन्वेस्टमेंट का बास्केट होता है जिसमें स्टॉक्स और बॉन्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ETFs के थ्रू आप एक साथ ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो और ये इजी टू ट्रेड होता है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सबसे पहला फीचर है ETFs कैन बी बॉट एंड सोल्ड ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। ETF को मार्केट आवर के दौरान कभी भी बाय या सेल किया जा सकता है। सेकंड है ETFs ऑफर ग्रेटर टैक्स बेनिफिट्स कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। ETFs म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट है ETFs हैव लोअर मैनेजमेंट फीस कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। ETFs की फीस कम होती है क्योंकि ज़्यादातर ETFs पैसिवली मैनेज होते हैं। फोर्थ है ETFs होल्डिंग आर disclosed daily, allowing the investor to see exactly what they own. ETFs अपनी होल्डिंग डेली डिस्क्लोज करता है जिससे इन्वेस्टर्स को पता होता है कि वो एग्जैक्टली किस में इन्वेस्ट कर रहा है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ETFs। ETFs के कितने टाइप्स होते हैं जैसे कि इंडेक्स ETFs, बॉन्ड ETFs, कमोडिटी ETFs, स्टॉक,
gold, currency and foreign currency. Let's discuss them one by one. सबसे पहला है index ETF. Index ETFs are designed to track the performances of a specific market index. This means the ETFs copies the composition of an index like S&P 500, Dow Jones. If the index goes up, the ETF's value increases, and if in the index falls, the ETF value decreases. These ETFs may be based on the stock, bonds, commodities, or the currencies. They are passively managed, which keep the cost low. इंडेक्स ETFs का मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करना, जैसे कि S&P 500, डो जोन्स इंडेक्स जैसे मूव करेगा ETF भी वैसे ही मूव करेगा। ये ETF यूजली पैसिवली मैनेज होते हैं, इसीलिए इनकी फीस भी कम होती है। सेकंड है बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। A bond exchange traded fund invests in a portfolio of different bonds such as government bonds, corporate bonds, or municipal bonds. Bond ETFs pay regular interest income, usually monthly. They are easier to trade than the individual funds, than individual bonds because they can be bought and sold anytime during the market hours. Since they hold many bonds, risk is diversified. If one bond performs poorly, other may balance the loss. बॉन्ड ETFs गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इन्वेस्टर्स को रेगुलर इंटरेस्ट इनकम देता है, यूजली मंथली बेसिस पर। बॉन्ड ETFs को स्टॉक एक्सचेंजेस पर कभी भी बाय या सेल किया जा सकता है, जो इंडिविजुअल्स बॉन्ड के कंपैरिजन में इजी होता है। मल्टीपल बॉन्ड्स की वजह से रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट है कमोडिटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। A commodity exchange traded fund invests in physical commodities like gold, silver, oil, or agriculture products. Investors can gain exposure to the commodity prices without directly buying or storing the physical commodities. These ETFs are traded on stock exchanges just like a stock. कमोडिटीज ETF लाइक गोल्ड, सिल्वर, ऑयल या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कमोडिटीज में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर्स को फिजिकल कमोडिटी खरीदने या फिर स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी प्राइस मूवमेंट का बेनिफिट मिलता है। टाइप्स ऑफ कमोडिटी ETF। फर्स्ट है सिंगल कमोडिटी ETF, ट्रैक द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी ओनली लाइक द गोल्ड ETF। सेकंड है मल्टीपल कमोडिटी ETF। In multiple commodity ETF, invest in more than one commodity to reduce the risk. And the last is future-based ETF, uses future contracts instead of physical commodities. Next is stock ETF. A stock ETF allows the investors to buy a group of stock in a single investment. Most stock ETFs track an index or the sectors are passively managed, which result in lower the fees. स्टॉक ETFs के थ्रू इन्वेस्टर एक साथ कई शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। ये ETFs ज़्यादातर इंडेक्स या फिर सेक्टर को फॉलो करते हैं और इसीलिए फीस कम होती है। नेक्स्ट है हमारा गोल्ड ETF. Gold ETFs track the market price of the gold and are traded like the stock. They are cheaper than buying the physical gold and eliminates the storage and security cost. गोल्ड ETF गोल्ड की प्राइस को ट्रैक करता है और स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में स्टोरेज और सेफ्टी का प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट है करेंसी ETF. Currency ETFs track the performances of a single currency or a basket of currencies. They allow the investors to participate in a foreign exchange market without directly trading the currencies. करेंसी ETFs फॉरेन करेंसी के प्राइस मूवमेंट का एक्सपोजर देता है बिना डायरेक्टली करेंसी ट्रेडिंग किए। नेक्स्ट है ज्योग्राफिक ETFs. Geographic ETFs focus on investments in a specific country, region, or continent. They invest in stock or bonds of the companies located in that area. Geographic ETFs किसी specific country या फिर region के companies में invest करता है।
अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सबसे पहला है सिंपल टू ट्रेड। ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, इसीलिए इन्वेस्टर्स मार्केट आवर्स के दौरान कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की तरह एंड ऑफ द डे का वेट नहीं करना पड़ता। सेकंड है डाइवर्सिफिकेशन मींस रिस्क स्प्रेडिंग। ईटीएफ एक साथ ही सिक्योरिटीज होल्ड करता है, जिससे रिस्क स्प्रेड हो जाता है। अगर एक शेयर गिरता है तो दूसरे का इम्पैक्ट कम कर देता है। थर्ड है कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब लो कॉस्ट। ईटीएफ ज्यादातर पैसिवली मैनेज होते हैं, इसीलिए फंड्स मैनेजर की कॉस्ट नहीं होती। इसी वजह से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का एक्सपेंसेस रेशियो म्यूचुअल फंड से कम होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ईटीएफ डेली अपनी होल्डिंग डिस्क्लोज करता है, जिससे इन्वेस्टर्स को क्लियर पता होता है कि वो किस एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। ईटीएफ्स हर एसेट क्लास के लिए अवेलेबल होता है, स्टॉक, बॉन्ड्स, गोल्ड, करेंसीज, सेक्टर एक्सेट्रा। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग और स्टॉप लॉस जैसे ऑप्शंस भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लो एक्सपेंसेस रेशियो। ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो लो होता है, जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स के रिटर्न को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है नो मैनेजरियल रिस्क। ईटीएफ इंडेक्स को फॉलो करता है, इसीलिए फंड्स मैनेजर की गलती का रिस्क नहीं होता। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सबसे पहला है ट्रैकिंग एरर। ईटीएफ इंडेक्स को फॉलो करता है, लेकिन फीस और कॉस्ट की वजह से एग्जैक्ट रिटर्न नहीं दे पाता, जिसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं। सेकंड है बिड आस्क स्प्रेड। ईटीएफ बाय और सेल प्राइस के बीच डिफरेंस होता है, जिसे बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं। लो वॉल्यूम ईटीएफ में ये डिफरेंसेस ज्यादा हो सकता है। थर्ड है लिमिटेड वैरायटी। कुछ ईटीएफ सिर्फ लिमिटेड सेक्टर या फिर थीम पर बेस्ड होते हैं, जिससे डाइवर्सिफिकेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट है हायर कॉस्ट कंपेयर टू द इंडिविजुअल स्टॉक्स। अगर आप सिर्फ एक शेयर खरीदते हो तो ईटीएफ उसके कंपैरिजन में महंगा पड़ सकता है। नेक्स्ट है लेस कंट्रोल ओवर द होल्डिंग। ईटीएफ्स में इन्वेस्टर्स को इंडिविजुअल शेयर चूज करने का ऑप्शन नहीं होता है। एंड द लास्ट इज अंडरलाइंग एसेट रिस्क। ईटीएफ्स का रिटर्न मार्केट मूवमेंट पर डिपेंड करता है, इसीलिए मार्केट गिरने पर ईटीएफ भी गिरता है। अब जो मेन क्वेश्चन है उसे डिस्कस करते हैं। आर ईटीएफ्स बेटर देन म्यूचुअल फंड्स? ईटीएफ म्यूचुअल फंड से बेटर है या फिर नहीं, ये फिक्स नहीं होता है। ये इन्वेस्टर्स की गोल्स, नीड और स्ट्रेटजीज पर डिपेंड करता है। दोनों के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट एफिशिएंसी। ETFs generally have lower expenses ratio. This lower cost make the ETFs more appealing for the long-term investors. ETF का एक्सपेंस रेशियो कम होता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। कम कॉस्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा रिटर्न इन्वेस्टर के हाथ में। बी पार्ट है म्यूचुअल फंड्स। Actively managed mutual funds tends to have the higher fees because they employ the funds managers who make the investment decisions. However, for investors who believe in active management, paying these fees might be worth it. म्यूचुअल फंड्स में फंड्स मैनेजर होते हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, इसी वजह से फीस ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स को लगता है कि एक्सपर्ट मैनेजमेंट के लिए फीस देना सही है। सेकंड है ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ए पार्ट है ETFs. ETF trades on exchanges like stock, meaning you can buy or sell the ETF throughout the day, which offers flexibility. ETF शेयर्स की तरह ट्रेड होती हैं। इन्वेस्टर मार्केट ओपन होने पर कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी ETFs को अट्रैक्टिव बनाता है। बी पार्ट है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड सिर्फ दिन के एंड पर बाय या सेल होता है। रियल टाइम ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं होती है, जो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए ड्रॉबैक हो सकता है। थर्ड है मैनेजमेंट स्टाइल। In ETF, passive management means ETFs simply follow an index and do not try to beat the market.
These keep the cost low and the performances close to the index. ETF पैसिवली मैनेज होता है, मतलब ये सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करता है, मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करता है. In mutual funds are oftenly actively managed, which can be beneficial for the investors seeking the market beating return. म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज्ड होता है. इसमें फंड मैनेजर मार्केट से बेटर रिटर्न लाने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट मिनिमम. ETFs typically have no minimum investment beyond the cost of a single share, making them accessible to new investors. ETF में सिर्फ एक यूनिट खरीद कर भी इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है, जो बिगनर्स के लिए इजी होता है. Whereas in mutual funds, many mutual funds have minimum investment requirements, which can be a barrier for some investors. म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है, जो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है. एंड द लास्ट इज टैक्स एफिशिएंसी. ETFs आर मोर टैक्स एफिशिएंट ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर. ETF का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि टैक्स कम लगता है, इसीलिए ये टैक्स एफिशिएंट होता है. वेयर एज इन म्यूचुअल फंड आर लेस टैक्स एफिशिएंट because they distribute the capital gain where the assets are sold at a profit. म्यूचुअल फंड में जब फंड मैनेजर एसेट सेल करता है तो कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है. So, in conclusion, ETF are better than mutual fund in the term of cost efficiency, trading flexibility, lower minimum investment, and tax efficiency. ETF कोस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी और टैक्स और मिनिमम इन्वेस्टमेंट के मामले में बेटर होता है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर के डिसीजन पर भरोसा करता है तो म्यूचुअल फंड्स बेटर हो सकता है. इसीलिए फाइनल चॉइस इन्वेस्टर के गोल पर डिपेंड करती है. So this is all about today's video. If you found this video helpful, please like, share with your friends and subscribe to the channel for more easy finance concept. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Until then, keep learning, keep growing only with Learn Well.